So friends, after getting the concept of potential, hope you are clear about it. Now let's obtain the formula for electric potential. Now, concept of potential was work required to move a unit positive charge from infinity to a given point in the electric field. So potential was nothing but work done per unit charge, and that is known as negative integration E bar dot dl bar. Okay, so let's obtain the formula, obtaining expression for potential. Now V is equal to negative integration E bar dot dl bar from infinity to a given point A. From infinity to a given point A. Now here taking E bar and dl bar along the same path, but we can say that E bar dot dl bar is E dl directly from infinity to given point A. Now let's define. Suppose is a source charge Q जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से यहाँ पे at point A. Now electric field and displacement both are in same direction along the same line, so dot product will come out to be EDL simply. Point A के पोजीशन को बोल देते हैं हम लोग, let's set a distance r from the center, so to position r from infinity to a given point having position vector r. Now we know that as E is equal to kq upon r square, formula for electric field intensity. So this will be, therefore V will now be equal to negative E, that is kq upon r square into displacement को dr बोल देते हैं from infinity to given point at a distance r. Let's take this as capital R just to have it a different symbol. Now so k and q being constant, they come out integration 1 upon r square dr from infinity to given point r. This will be minus kq integration of 1 by r square. Hope you remember the formula for integration x raised to n. X raised to n plus 1 upon n plus 1. So this will be r raised to, this we can simplify it, kq integration r raised to minus 2 dr. So r raised to minus 2, power is minus 2. So here it will be x raised to minus 1 upon minus 1 from infinity to r. So this will be minus kq into minus 1 by r from infinity to given point. Minus 1 by r. Putting up the upper limit minus lower limit. Minus 1 by r upper limit रखा, वेरिएबल की जगह माइनस लोअर लिमिट रखा. Now 1 by infinity tends to 0. So therefore what you get is minus minus plus kq upon r. Formula for potential at a point is kq upon r, where r is the distance of that point from source charge. That is the formula for potential, kq upon r. So this is the formula for potential due to point source charge q at a distance r from the source. Now here we have assumed that source charge, we have taken source charge as the origin of the system. Now when source charge not at origin, अगर source charge origin पे ना होवे तो क्या? तो formula for potential at point A will be kq upon mod of r bar minus r dash bar. Mod of r bar minus r dash bar. What is r here? R is the position vector of the point. Position vector of point A where we want the potential. And r dash bar is the position vector of source charge. यानी कि ये केस कौन सा हो गया? When source charge not at origin, at a position r dash bar. यानी सिस्टम में कुछ ऐसा दिखेगा. ये सिस्टम है, our coordinate system. सोर्स चार्ज यहाँ पे जिसका पोजीशन r डैश बार, अन्य पॉइंट ए जहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए उसका पोजीशन r बार. सो दिस r bar mod r bar minus r dash bar gives the distance from the source charge. ये distance r is it. So this denominator gives the distance of point A from Q. तो वही सेम सिचुएशन, distance of point A from the Q. यानी अगर आपको पोजीशन ऑफ सोर्स चार्ज ओरिजिन बोला या कुछ नहीं बोला बाय डिफॉल्ट, तो इट इज एट ओरिजिन,
तो वो ये फॉर्मूला यूज करेगा। अगर आपको सोर्स चार्ज ओरिजिन पे न दिया हो, इन दैट केस यूज दिस फॉर्मूला आर बार माइनस आर डैश बार। फ्रॉम दिस यू कैन गेट दिस फॉर्मूला। कैसे? आर डैश को 0 ले लो तो mod of r bar will be r simply. Okay, so that is the formula for potential at a point due to point charge. Potential at a point due to point source charge. So what we obtain the formulas as work done is, sorry, potential is work done point charge, that is work required to move a unit positive charge from infinity to a given point in the electric field against the electric field. And another formula we obtain as kq upon r, where k is again the Coulomb's constant given as 1 upon 4 pi epsilon 0, वो तो है जिसका वैल्यू 9 into 10 raised to 9 for vacuum, न्यूटन मीटर स्क्वायर upon कूलम स्क्वायर, दैट्स k. तो k q upon r, अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे है तो, एंड इफ सोर्स चार्ज नॉट एट ओरिजिन, द फॉर्मूला r bar minus r dash bar, where r dash bar is the position vector of source charge and r is the position vector of point where we want the potential, point A. Okay, this is what we obtained. चलो based on this let's take the unit and dimension equation. Definition देख लिया, अब यूनिट क्या आएगा इसका, वर्क डन पॉइंट चार्ज, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, तो व्हाट ऑफ द डायमेंशन, एंड इसको हम लोग प्यार से वोल्ट कहते हैं, V. तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, इट इज ऐसा यूनिट, एंड वोल्ट इज नथिंग बट जूल पर कूलम. लेट्स से इट्स डायमेंशन इक्वेशन, जूल का तो यू नो m1 L2 T-2, चार्ज का A1 T1, so that makes m1 L2 T-3 A-1. Dimensional equations are important because they can be asked in MCQs. 1 mark MCQ में आ सकता है. Secondly, अगर short note पूछा तो it becomes an additional advantage for us. यूनिट हो गया, डायरेक्शन हो गया, अब बोलोगे सॉरी यूनिट हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, अब बोलोगे इसका डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन क्या, तो what we have the definition of potential as E bar dot dl bar, and we know that dot product is always scalar. So potential is purely a scalar quantity and therefore it does not have any direction. Scalar quantities do not have any direction. So it is purely a scalar quantity. Here, if source charge is positive, then V will be positive as per the formula. Q अगर positive then V positive होगा, and if source charge is negative, then V is negative. यानी कि अगर पोटेंशियल को पॉजिटिव दिया तो फाइन, अगर पोटेंशियल नेगेटिव है तो क्या, तो हम लोग नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि अगर नेगेटिव है -5 वोल्ट दिया, -5 वोल्ट, तो हम लोग सोचते हैं उल्टा हो गया तो डायरेक्शन, नहीं, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए नेगेटिव साइन शोज सोर्स चार्ज इज नेगेटिव. तो पोटेंशियल का पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस शोज द टाइप ऑफ सोर्स चार्ज, बाकी उसको वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है. द पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द सोर्स पोटेंशियल हैज नथिंग टू डू विद द वैल्यू, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द टाइप ऑफ सोर्स चार्ज. अगर पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव, एंड पोटेंशियल अगर नेगेटिव आता है तो सोर्स चार्जेस नेगेटिव, ये खास ध्यान रखना. यानी अगर -5 वोल्ट आता है पोटेंशियल तो दैट इज -5 जूल पर कूलम, यानी पर 1 कूलम वर्क डन इज 5 जूल. अब माइनस साइन मतलब क्या, वर्क डन उसके ऊपर हुआ, नहीं, दैट्स नॉट द केस. पर 1 कूलम वर्क डन इज 5 जूल बाय नेगेटिव सोर्स चार्ज. सो ये माइनस साइन को वैल्यू के साथ कोई लेना देना नहीं है, energy of that charge would be 5 joule only. ये खास ध्यान रखना, negativeness of potential is connected to the source charge and not the test charge which is being moved. Okay, तो ये हो गया पोटेंशियल का कंसेप्ट, उनका फॉर्मूला, उसका यूनिट, डायमेंशनल इक्वेशन एंड पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या. अब ये तो एक चार्ज है, अगर सिस्टम मोर देन 1 चार्ज होता तो, फॉर सिस्टम ऑफ मोर देन 1 सोर्स चार्जेस, अगर सोर्स चार्ज एक से ज्यादा होता है तो क्या, तो उस केस में, यानी केस कैसा है, Q1 Q2, Q1 हैविंग पोजीशन एट R1 बार, Q2 हैविंग पोजीशन एट R2 बार, एंड अ थर्ड चार्ज Q3 हैविंग पोजीशन एट R3 बार. ये तीनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A हैविंग पोजीशन एट R बार क्या आएगा, वी वांट पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू ऑल दिस 3 चार्ज. हर एक चार्ज का अपना पोटेंशियल होगा. अब ओरिजिन पे किसको लें, कांट से, हर एक का पोजीशन वेक्टर डिफाइंड है, इसलिए फॉर फॉर्मूला वही आएगा व्हेन सोर्स चार्ज नॉट एट ओरिजिन का. पहले चार्ज के कारण V1 पोटेंशियल, दूसरे का कारण V2 पोटेंशियल, तीसरे का कारण V3 पोटेंशियल, सिंपल वेक्टर सम ऑफ पोटेंशियल, सिंपल सम ऑफ पोटेंशियल्स. अब पहले वाले का पोटेंशियल क्या होगा, कि चार्ज Q1 अपॉन मॉड ऑफ ए पॉइंट, किस पॉइंट पे चाहिए, ए पे, ए का पोजीशन वेक्टर, माइनस कौन है सोर्स चार्ज, R1 बार,
प्लस दूसरे के लिए सोर्स चार्ज ही है, तो फर्क कितना पड़ेगा, मॉड ऑफ आर बार माइनस आर टू बार। फिर थर्ड चार्ज इज सोर्स चार्ज, तो के क्यू थ्री अपॉन मॉड ऑफ आर बार माइनस आर थ्री बार एंड सो ऑन। अगर मोर देन दिस चार्ज हो, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसको यहाँ नेगेटिव रखा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे माइनस साइन आएगा। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ मोर देन वन सोर्स चार्जेस। अगर एक से ज्यादा सोर्स चार्ज का सिस्टम है तो उसके लिए फॉर्मूला ये से आएगा। अच्छा, ये तो सारे सोर्स चार्ज सेपरेट पॉइंट चार्जेस हैं फॉर कंटिन्यूअस चार्ज। अच्छा, इसको हम लोग डिस्क्रीट चार्ज भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर उसका ऑपोजिट कंटिन्यूअस चार्ज हो तो वही अपना पुराना टेक्निक, छोटे एलिमेंट के लिए फाइंड करो, फिर इंटीग्रेशन कर दो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड करो, फिर इंटीग्रेट कर दो, v इक्वल टू इंटीग्रेशन dv। एंड dv कहां से आएगा, dv क्या आएगा, तो dv विल बी इक्वल टू k इंटू dq अपॉन, एंड dq को क्या लिखोगे, वॉल्यूम चार्ज हो तो रो dv, सरफेस चार्ज हो तो सिग्मा dA, और लीनियर चार्ज तो लैम्बडा dA। ओके, सो दैट वे वी कैन फाइंड आउट फॉर, यानी छोटे से एलिमेंट के लिए फाइंड करो फिर इंटीग्रेट कर दो। दैट इज रिगार्डिंग कंटिन्यूअस चार्ज। हमारे कोर्स में ज्यादा नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं। एंड एक और सिस्टम बचा फॉर स्फेरिकल शेल। ये एक पर्टिकुलर केस है जो हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यू में आए तो काम आएगा। फॉर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब क्या, चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, अंदर होलो स्फीयर है, जैसे होलो स्फीयर और होलो स्फीयर। तो इस केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा वो देखते हैं। तो V इनसाइड, याद है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, शेल के केस में चैप्टर 1 में लिखा था, पर इधर क्या आएगा पोटेंशियल, तो V इनसाइड इज दैट इक्वल टू दैट ऑन द सरफेस एंड दैट इज KQ अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। and V outside, potential at any point outside the sphere will be KQ upon R, distance from center। यानी इस केस में भी, आउटसाइड वाले केस में भी, एंटायर स्फेरिकल शेल will work like a point charge with entire charge at the center। For points outside the spherical shell, the entire spherical shell will behave as a point charge such that entire charge is at the center, यानी डिस्टेंस सेंटर से ले लेगा। तो अंदर यूनिफॉर्म पोटेंशियल, potential at every point in the spherical shell inside the spherical shell is uniform and that is equal to that on the surface, KQ upon R। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। Okay, so that's regarding different cases। पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, मोर देन वन पॉइंट चार्जेस, कंटिन्यूअस चार्ज हुए तो, अन्य स्फेरिकल शेल का स्पेशल केस। सो दिस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगली बार मिलेंगे। तो यार थोड़ा वक्त बचा है, इसलिए चलो हम साथ में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने देखा था कि V इज वर्क डन पर चार्ज, दैट इज नेगेटिव इंटीग्रेशन E डॉट ds बार from infinity to a given point P to find point A, that is again formula KQ upon R। अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे हुए तो, और सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हुए तो फॉर्मूला वाज लाइक दिस, when R dash bar is position across source charge and there is a position across point A। ये हमने फॉर्मूला देखा था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट वाज पोटेंशियल, फिर से एक बार याद करें तो, प्लस Q चार्ज सोर्स चार्ज, उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में +1 कूलम चार्ज जो पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो यूनिट पोल चार्ज लाइन एट इन्फिनिटी इज ब्रॉट फ्रॉम दैट इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मूविंग अ यूनिट पोल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर अगर मान लो ये +1 कूलम चार्ज ना होता एंड कोई चार्ज Q होता तो क्या, तो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट हो जाता, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। एंड अगर हम किसी चार्ज पे वर्क डन कर रहे हैं तो वो वर्क डन जाएगा कहाँ, आवर वर्क डन यानी आवर एनर्जी यूटिलाइज, वेयर डज इट गो, इट इज स्टोर्ड इन द चार्ज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलाव में हमने पढ़ा हुआ है कि या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हम लोग इसको मूव कर रहे हैं, यानी जस्ट वी आर शिफ्टिंग द पोजिशन, वी आर नॉट गिविंग एनी मोशन, नो वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, नो मोशन, no force applied, just shifting the charge from here to here। That shifting of the charge gives a change in position, that is potential energy। So here when we move a charge from infinity to a given point, wording ध्यान रखना, we are not saying unit pole charge, now we are moving any charge Q,
moving a charge q from infinity to a given point, that work done gets stored in the charge in form of potential energy, and that potential energy is electric potential energy. Electric potential energy as being potential energy we denoted by u. तो electric potential energy u क्या होगा? Work required to move a charge q from infinity to a given point, and that work done is q into v. कैसे? Work done is q into v. तो सिंपल हो गया कि इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे ला रहे तो q into v, and the formula now becomes v का फॉर्मूला है हमारे पास kq into small q upon r. So that is electric potential energy. What is its unit? Obvious energy है तो जूल. mh equation m1 into t minus 2. फॉर्मूला में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, दोनों में फर्क कितना है? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में. यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बदले चार्ज क्यों लेने का, दैट्स ऑल. जो 11 में था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे थी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सेम. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर यूनिट चार्ज को ला रहे हो तो पोटेंशियल, और गिवन चार्ज क्यू को ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी. सो फॉर्मूला में खाली क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड ये तो हम इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट ला रहे हैं. नॉर्मली हम इन्फिनिटी जाते नहीं है. हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इज वी मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. We move from one point to another point in electric field. So there the concept of potential difference comes. So in that case, U will be equal to charge into potential difference. A very very important formula, which will be useful in further chapters also. What is potentiality? Work required to move a given charge Q from infinity to a given point, or from one point to another point in the electric field. How to obtain it? U इक्वल टू क्यू इंटू वी या फिर क्यू इंटू डेल्टा वी. अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस. अगर इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट आ रहे हो तो पोटेंशियल. एंड फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन आर. खास ध्यान रखें, पोटेंशियल वाज वन चार्ज क्वांटिटी. इट वाज डिपेंडिंग ऑन ओनली अ सिंगल चार्ज, दैट इज अ सोर्स चार्ज. बट पोटेंशियल इज नॉट अ क्वांटिटी ऑफ ओनली वन चार्ज. हियर टू एंटिटीज आर इन्वॉल्वड. सोर्स चार्ज, another charge which has been moved. So it is a potentiality of the system of the charges, not the single charge. It is a potentiality of the system of the charges. Okay, so इसलिए potentiality के बारे में खास ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, it's not a potentiality of the given charge, but it is electric potentiality of the system of given charges. क्योंकि अगर इसका ही potentiality बोलेंगे तो ये कहाँ गया? अगर इसको चेंज कर तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए. Is it so? नहीं. अगर ये चेंज होगा तो वर्क डन भी चेंज होगा, इसलिए पोटेंशियलिटी भी चेंज होगा. सो पोटेंशियलिटी डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम. एक तो सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दूसरा जिसको मूव किया जा रहा है वो. इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम. ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट सोर्स चार्ज ओरिजिन पे उसके लिए. अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे ना हो तो इसके बदले हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो दैट केस क्यू क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर बार माइनस आर डैश बार. यानी सिचुएशन क्या हो गया? ये सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर एंड ये गिवन चार्ज क्यू का पोजीशन वेक्टर. या फिर इसे याद रखें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, या इसको यूं याद रखें, r इज द डिस्टेंस इन द टू चार्जेस. वो ज़्यादा इजी पड़ेगा. ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ आई होप you are clear with concept of potential and potential energy in case of electric field also. The concept is all similar to that in the gravitational field. So here, that is regarding electric potential energy.